Let me guess. Both are very close. Your syllabus is mostly done, but your brain still feels blank, confused, and overloaded. If that's you, don't worry, this video is definitely made for you. In this video, I'll show you how exactly you can revise with small, achievable steps with realistic goals so that you can feel confident and calm till your exam day. Before starting, know this one rule. In this last phase, you are not supposed to learn anything new, which means no new chapters, no new books, no new resources, and no random YouTube videos. This last phase is for revision, strengthening what you actually already know, and reducing your silly mistakes. So once you accept this, half of your stress automatically disappears. Now, second thing is to get organized. What you need to do is take a paper and divide your syllabus into three parts. The strong topics, the medium topics which you know but you might forget about it. But जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, you might forget it easily. And third is your weak portions which you have to work upon very seriously. अब लास्ट के कुछ दिनों में लाइक इन 10 days हमारा मेजर फोकस हमारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स नहीं होगा. वी वोंट कम्प्लीटली अवॉइड इट, वी विल कंसिडर दैट टू, बट कम्प्लीटली वो करना नहीं है. हमें क्या करना है, वील फोकस ऑन द मीडियम टॉपिक्स एंड द वीक वंस सो दैट यू कैन एक्चुअली फोकस वेयर यू लैक एंड जहाँ पर आपके मेजरली मिस्टेक्स होती है, जहाँ पर आप चीज़ें भूल जाते हो. सो इट वोंट टेक लॉन्ग, नो फैंसी प्लानिंग, नो लॉन्ग टाइम टेबल्स. 10-15 मिनट बैठो, हर सब्जेक्ट के लिए डिवाइड करो क्या आपको बहुत अच्छे से आता है, किस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, कहाँ आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, जहाँ आपको कंप्लीट रिविजन करना पड़ेगा. So do that thing and then we'll switch on to the next step. Now we'll actually start with our revision. How we are supposed to do that is, you have to divide your revision into 3 sessions. Session number 1 में हम क्या करेंगे, हमारी concept clarity. In the first 2-3 hours when you sit and study one subject, make sure you clear all your concepts, you study what you have to. आप अपने summaries पढ़ो, notes पढ़ो, जो आपकी formula sheets है वो पढ़ो, read everything you can, read your flow charts, read the diagrams, and just focus on concept clarity. Ask yourself, do I understand this well enough? Do I know this well enough? Am I clear with this concept? Can I explain this topic to anyone if I have to? And if the answer is yes, you are good to go. ठीक है, ये टाइम आपको वापस से री राइटिंग करने का, री रीडिंग करने का, बार बार उस चीज़ को रिपीट करने का नहीं है. जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड कनेक्ट कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज़ अब याद हो गई है, ये चीज़ मुझे क्लियर है. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड विद योर फेज 1 विच विल मेक श्योर दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट इन डिटेल. नंबर 2 विल बी योर एक्टिव रिकॉल. इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, solve short questions, revise your diagrams, flow charts, try making flow charts yourself step by step कि ये chapter में initially ये था, then we read about this, then we read about this, this is how the flow of the chapter is, this is what all I have studied. And wherever you get stuck, कहीं numerical में किसी formula में stuck हो गए हो, कोई चीज़ particular याद नहीं आ रही है, that is good. बिकॉज दैट्स हाउ रिविजन एक्चुअली वर्क्स. आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ अभी भी लैकिंग है, यहाँ मुझे अभी भी मेहनत करनी है, ये चीज़ मुझे याद हुई है, मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से आंसर कर पाई पर शायद मैं इसको अच्छे से आंसर नहीं लिख पाई हूँ, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. दिस ऑल विल हेल्प यू नो वेयर योर एक्चुअल वीक पॉइंट्स आर. पूरा चैप्टर हमारा वीक कभी नहीं होता है, हमें काफ़ी तो उसमें टॉपिक्स होते हैं जो हमें आते होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल याद ही नहीं होते. एंड आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, आफ्टर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, आफ्टर सॉल्विंग पेपर्स, आफ्टर रीडिंग द डायग्राम्स, रिकॉलिंग द फ्लो चार्ट्स एंड रिकॉलिंग द ओवरऑल चैप्टर, यू अंडरस्टैंड जहाँ पर भी आप अटक रहे हो वहाँ पर आपका वीक पॉइंट है एंड वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू एक्चुअली रिवाइज एंड नो where your weak point is and where you have to work more. Now, in the third and the last phase, you have to fix your mistakes. Fix your mistakes as in, हमने जब क्वेश्चन सॉल्व करे, हमने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करे, हमने आंसर्स जब लिखे, कहाँ प्रॉब्लम आई, व्हाट वाज योर एक्चुअल मिस्टेक, एनालाइज कहाँ से वो मिस्टेक ओरिजिनेट हुई है. सिर्फ क्या मिस्टेक हुई है देख कर नहीं होगा, यू नीड टू नो वाई दैट मिस्टेक हैपेंड, व्हाट वाज द रीज़न फॉर इट टू हैपन. क्या मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, क्या मैंने कुछ सिली मिस्टेक कर दी, एम आई रिपीटिंग माई मिस्टेक्स.
उन सब चीज़ को नोट करो. वट एवर योर रिपीटेड मिस्टेक्स आर, नोट देम, नोट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, नोट वेयर यू डू नॉट नो द कॉन्सेप्ट, कहाँ आपको प्रॉब्लम है. When you note these mistakes, when you understand where you are going wrong, you save your marks in your board exams. So that is why solving sample papers, doing questions, practicing regularly is important, because it helps you know where you are repeating your mistakes, what are the mistakes which you are not going to get rid of, and where you have to focus more. तो इससे आपके मार्क्स बोर्ड में बचते हैं, because then you do not repeat those mistakes while you're solving your board exam. Next thing is to solve sample papers. What do I mean by solving sample papers? Scoring 100 marks at home? No. It means you have to make sure that you are improving your speed, you are seeing कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही है, you are practicing regularly, you know where your mistakes are. When you solve a paper, you understand the question patterns. Solving sample papers at home helps you understand the examination settings, how you will sit for 3 hours and write continuously, you will save your time. Time management का आपको idea लगता है when you solve papers at your home. So make sure that you solve sample papers every alternate day and for every subject, क्योंकि हर subject का time management, कहाँ कम time देना है, कहाँ ज़्यादा time देना है, अलग तरीके से होता है. So when you solve papers, you come to know about that. When you have only 3 to 4 days left before your board exams and you have to revise every single thing in those 3 days, तो हम फॉलो करेंगे 3-day रिविजन रूल, जिसमें हम क्या करेंगे. इन द फर्स्ट डे वील सॉल्व मीडियम टॉपिक्स एंड वील, जो हमने रिविजन किया था, हम मीडियम टॉपिक्स रिवाइज करेंगे जो हमें आते हैं, बट वी आर स्टिल लेस कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि शायद हम भूल जाएंगे. सो नाउ वी हैव टू लॉक इन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड लॉक इन दोज टॉपिक्स कि ठीक है, नाउ दीज आर ऑल्सो माई स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स. उनको अच्छे से पढ़ना है, उनमें जितनी मेहनत रिक्वायर्ड है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, या कुछ मिस्टेक्स है जो उन टॉपिक्स में हो रही थी उनको वापस से अपने दिमाग में गो थ्रू करो कि ये मिस्टेक्स दोबारा एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है, एंड उनको कम्प्लीटली अच्छे से समझ कर सॉल्व वगैरह करके लॉक इन कर लो. Then on the second day, revise your weak topics again, give time to it, उसको डिटेल पढ़ाई करो उसकी in that one day. जो भी आपके weak topics है, 5 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, वन शॉट देखो जो आपको समझ में आते हैं, जो आपने पहले ट्राई किए हुए, जिससे आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. डोंट स्विच टू अ न्यू रिविजन टॉपिक, न्यू रिविजन वीडियो, न्यू रिविजन सीरीज़. जो पहले देखा हुआ है, जो आता है, जैसे समझ में आता है उस तरह से करो. रीड करो उन टॉपिक्स को दोबारा, उनको कॉन्सेप्ट कोर से समझो, अंडरस्टैंड दैम एंड मेक देम वेरी क्लियर टू यू, एंड देन सॉल्व उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, राइट, ट्राई एंड आंसरिंग देम एंड ट्राई एंड रिकॉलिंग देम एक्टिवली कि ठीक है दिस इज़ हाउ. एंड पता है वीक टॉपिक्स का क्या किया करो, मेक माइंड मैप्स, मेक रिविजन नोट्स एंड मेक योर एक्रोनिम्स, मेक सम शॉर्ट ट्रिक्स, और कुछ ऐसा वर्ड बना लो जिससे यू रिवाइज कि हाँ भाई ठीक है, ये चीज़ अगर आएगी तो मैं इसको बोर्ड एग्जाम में इस टर्म से याद करूँगा. दैट विल हेल्प यू. अगर आप एक्रोनिम्स बनाते हो आपको वो हेल्प करते हैं, अगर आप निमोनिक्स बनाते हो आपको हेल्प करते हैं ऑन द एग्जाम डे व्हेन यू डू नॉट रिकॉल समथिंग एंड आपको आपके वीक टॉपिक को याद करना है, तो इट वर्क्स लाइक मैजिक सच में. सो मेक दोज एक्रोनिम्स एंड जस्ट रिमेंबर कि हाँ मुझे इस चीज़ को इस तरह से याद रखना है, दिस इज़ वॉट ऑल इज़ देयर इन दिस टॉपिक एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट इट. उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पर ले आओ. एंड देन ऑन द लास्ट डे, जब हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, हम लाइट टॉपिक्स यानी कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, जो आप जिनके लिए ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो, इट दे जस्ट रिक्वायर अ रीडिंग और दे जस्ट रिक्वायर अ क्विक रिविजन, रिवाइजिंग फ्रॉम योर नोट्स, रिवाइजिंग द फ्लो चार्ट्स, रिवाइजिंग द डायग्राम्स. ये सारी चीज़ें आप करो लास्ट डे, ताकि दे विल स्टिक टू यू टिल द एंड. एंड देन मेक श्योर कि आप धीरे धीरे छोटे छोटे ग्लिम्सेस में ना उस चीज़ को रिवाइज करते रहो धीरे धीरे. जैसे मान लो आप लास्ट डे पर आ गए, नाउ हम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स तो उस दिन कर ही रहे हैं, बट मीडियम टॉपिक्स और जो आपके वीक टॉपिक्स थे उनको भी रिवाइज करने की ना इच्छा सी होती रहती है कि यार शायद भूल गए हैं, शायद दोबारा से पढ़ना है. तो जब भी बीच में गैप लेते हो 10 मिनट का कोई शॉर्ट लेक्चर लगा लो, कोई ऐसा रिविजन वीडियो लगा लो जिससे आप अपने आप उसको बार बार आपके वो दिमाग में चलता रहे एंड इट गेट्स एक्टिवली प्रोसेस्ड एंड आपके दिमाग में वो स्टोर होता रहे एंड आप उसको पक्की बात है कि नहीं भूलोगे. अगर आपको कोई मैप्स वगैरह हैं जो याद करने हैं, अगर कोई ऐसा डायग्राम है जो याद करना है, कॉन्स्टेंटली लुक एट इट. मतलब जब भी फ्री हो, ऐसे बैठे हो, फ़ोन है हाथ में, उसको देखते रहो. कुछ वीडियो लगा लो जो वो उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हो, उस मैप को एक्सप्लेन कर रही हो. उस चीज़ से आपको एक्टिवली वो चीज़ दिमाग में आती रहती है एंड याद होती रहती है. दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू द लास्ट डे, जब आपको एक नेक्स्ट डे एग्ज़ाम देना है. ठीक है.
एंड नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो प्लीज़ 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 ध्यान रखना है, इट्स अ वेरी बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेन, डू नॉट पुट अ मच प्रेशर ऑन योर बॉडी, ऑन योर ब्रेन, डू नॉट टेक स्ट्रेस. ध्यान से, आराम से, आपने बहुत पढ़ाई करी है, बहुत मेहनत करी है, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, डू नॉट गेट पैनिक कि पता नहीं बोर्ड कैसा जाएगा, कैसे एग्ज़ाम आएगा, मेरे को क्वेश्चंस आते होंगे नहीं आते होंगे. डू नॉट टेक स्ट्रेस, प्रॉपरली अपने मील्स लेना, स्टे हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड प्लीज़ रात में जब सो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके या बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन को प्रेशराइज करके ओवरलोडेड दिमाग से मत सोना. टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेन. You have prepared well, have faith in yourselves, have faith in your preparation, in your teachers. The efforts they have put in you, they will show their results, and you have already done the hard work. Now you just have to trust yourself and believe in you that you can do it, and revise smartly, stay calm, and you will definitely do good in your board exams. And if this video helped you even a little to calm yourself, to take that pressure out of your brain and reduce your stress, then do not forget to like, share and subscribe, and I'll see you in my next videos. Tab tak ke liye take care and bye bye.